I will start with my AMAZEWOW experience. First of all, I prepared it from interview bit and I did top 50 Amazon questions on lead code. That helped very much. And the application process started in April. After that, there was an online test which consists of 4 sections like coding questions, logical ability, MCQs, and some work experience related questions. After that, there was one interview. The interview started with some basic questions on my project and internship. Then we proceed to the coding round. He asked me 2 questions. First was number of islands. It was a easy medium type question, and the second one was based on strings. It was medium hard, and the question is available on Code a Little contest of strings. Okay, and after 2 months, I have got the offer from Amazon. Okay. So should I continue with my experience? Yes, Preeti, you can proceed. Okay, so I got a Google internship in my second year through a program known as STEP. So STEP stands for Student Training and Engineering Program. The internship program focuses on providing developmental opportunities to the students from groups which are historically underrepresented in tech fields. In India, these fields like these groups or these sections of society mainly include females, whereas in other parts of world it constitutes other sections of society. Since we are speaking about India, from now on I will talk about females because that's what step include in India. Okay, anyone in India who want to apply for the same must be a first or second year undergraduate female who is currently pursuing a bachelor's degree in tech-related fields. However, from this summer only, Google started taking hardware interns too. So yeah, if you are from hardware field, you can apply for that too from now on. Okay, so most of you will be having the question of how to apply, like how will you be able to apply for the same. So there are 4 ways by which you can apply for the same. First is you can ask for a referral from a Googler. You can contact them on LinkedIn or maybe through any source. If you know someone from your college who's working at Google, that will work fine. You can contact them and ask for the referral. Most of them end up giving you a referral if you have like apt amount of skills. They will be more than happy to give you the referral. Second is like filling the online application on their career portal. I think the application for STEP interns and like STEP program roll out in November, around in November. That's when I got to know about it. So you can check it out over there. Third is like, in my case, the Google contacted us through the placement cell. So yeah, that's another way. And fourth is Google's competition like Hashcode, CodeJam, Kickstart, and all that. Top performer get contacted by the recruiters, and so then they need to submit their resume and all. So basically, they are considered if they perform good in the competitions. So yeah, as I mentioned already, they start taking application in November. So you need to submit your resume and transcripts. In our case, they ask for the transcript later after interviews, but generally they ask for it with the resume. So once you have applied for the same, you need to wait for the shortlist to come. Or in your case, if you have applied through online portal, a mail confirming that you are selected, you need to wait for that. And if you got selected, then they will schedule 2 45 minutes interviews for you with the Google engine. So any questions till now? What do you think we should put in the CV? As in, we are just second years, so we don't really have any internships to show in the CV or even ready projects. Look, they know that you are in second year and hence they don't expect something extraordinary from you. They just want to know that you are really interested in the field. So your resume should say that yes, you are interested, and maybe by second year you get like if you are interested, you will most probably start like coding and all in first year, and you will have a good grasp on DS and Algo. So you can make some basic DS Algo based projects. They don't take much time, but they say a lot about you.
So yeah, as I said, they don't expect a lot, but yeah, these small things like small basic achievements like maybe a good rank in some contest that you gave, or and like basic projects, they help a lot. When you will see around, you see like not most of the people will be doing stuff. Like they will start doing something after third sem or fourth sem. So if you are doing this basic stuff and you have it on resume, you have a good like head start. So it makes you stand out. You just need to convey that you are really interested in the field, and that's it. I So think I can we put our ratings on these sites like Code Forces and Code Chef on the resume? Because for me, at least, I don't really have any projects and internships, and I don't think till November I will be able to make any. Okay, so yeah, you can definitely put your ratings on the resume. In fact, they are everyone don't get good ratings, so they are a really good indicator of you being a potential intern. So yeah, you can definitely do that. But in fact, I would suggest you do that. I would like to know like what level of rating should one have on Code Forces and Code Chef so that they can put it on their resume. Khushbu, it's not compulsory that you need to be a 4-star or 5-star to put it on your resume. As I said, you need to convey you are interested and you are trying. Most of the people don't even start like contest and all if they are too scared or if they are not ready in anything, but they don't take that initiative. So you have taken that initiative, again says a lot. It says that you are spontaneous, you are thinking about your future, you are like again you want to get in, you really want to learn, and that's what they see, that's what they look I for. would like to add something in this. Basically, if you have a rating around 1500 in Code Forces, for you, I'm specifically saying this about girls. And if you have a rating like this in Code Forces and a Code Chef star like 4-star, that will be very beneficial for you, that because it shows that you are good in competitive part too. That, so I guess above 1500 is always good, you can always put it that. But if it is below that, then I think you should not put that, because it may sometime give you a wrong impact on your resume. It shows that you are not that great in competitive programming, you are weak at that point. So only put those points on the resume which shows your ability, not your weakness. Can we put lead code rating also, the stars and like that profile? Yeah, you can put all the websites rating, whatever you do, top coder, at coder, lead code, whatever website you do, you can put always the rating, but it should be at least above the average or at least 1500 around. इतना तो होना चाहिए यार सबका. लीड कोड में like कितना stars, 3+, like कितना? Like I have given one contest on lead code, and after one contest I got the rating around 1500. So I guess 1500 is like very average, and 2-star is very average in lead code. So it should be at least 1700 or 3-star in lead code. Then you can always put your rating on your resume. And like how you said about Code Jam and Hash Code and Kickstart, so what should like for that, like if the Google people contact us through that, so what should be the rating like in the ranking in those competitions? So the girls participants in Code Chef, Kickstart, Code Jam, in all these field, the rating should be around in Kickstart. If I specifically talk about Kickstart, if you have a rating around 300 to 500 in Kickstart, it will be a very good rating for you guys. And in Code Jam, if you have a rating around 600, then you will definitely get a call from Google. It is the I mean, for boys it's very low, it's under 100, but for girls opportunities are very huge in this field, in competitive field also. So do practice competitive as well as development. Ma'am, I was asking that I have just entered third year, so can I apply for step competition for Google? I'm sorry, Muskan. Yeah, I'm sorry. The Step Intern program is for first and second years only, because they aim to give support to the people who are early in their career. So that's the aim. Okay, guys, we got your point. हम हिंदी में बात कर रहे हैं. Uh,
आप आप एक बार अपने थोड़े प्रोजेक्ट का ओवरव्यू टाइप दे सकते हो कि लाइक कौन से टाइप के थे या कॉम्पिटिटिव कोडिंग का कुछ? We have created the WhatsApp group, and I will share the link for the WhatsApp group for girls only. That doubt group will be only for girls, and you can ask your doubt regarding any opportunity we listed today. And if you are unable to understand Hindi, you can ask us personally later after the meet. हाँ, आई वाज आस्किंग कि आप अपने थोड़े प्रोजेक्ट्स का ओवरव्यू दे सकते हो कि किस टाइप के थे, किस लेवल के, ताकि थोड़ा आइडिया लग जाए। तो यार मेरे प्रोजेक्ट सही थे cause I was working in a startup, तो मतलब I had something to show। और उसके अलावा मेरे पास बेसिक प्रोजेक्ट्स भी थे, लाइक वेब स्क्रैपिंग का एक प्रोजेक्ट था, एक नॉर्मल फ्रंट एंड डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट था, एंड मैंने एक इंटर्नशिप भी की हुई थी डीन के अंडर। हमारा इंस्टीट्यूट लाइक कॉलेज प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी, तो उसमें मैंने थोड़ा काम किया था। तो बट मेरे को पता है लोगों का जिनका सिलेक्शन हुआ था और उनका इतना अच्छा प्रोजेक्ट नहीं था। उनके प्रोजेक्ट्स अगेन उनके प्रोजेक्ट्स वही सिग्निफाई कर रहे थे कि वी आर इंटरेस्टेड। कुछ लोग थे जिनके प्रोजेक्ट जो थे वो काफ़ी डीएसएल को बेस्ड, लाइक पार्ट सर्चिंग थिंग, आपने सुना होगा पार्ट सर्चिंग के लिए एक एप्लीकेशन बनता है, लाइक डाइजेक्स्ट्रा, काफ़ी सारे एल्गोरिदम लगा के ए स्टार, डाइजेक्स्ट्रा, बीएफएस एंड ऑल। हाँ हाँ, थैंक यू। मैम, हाँ जी। आई वाज आस्किंग कि मतलब अगर जैसे नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल का हैकेथॉन्स वगैरह में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, में भी कोई जीत रहे हैं, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है? मतलब इसके जैसे प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो इफेक्ट पड़ता है कि हाँ बच्चे का कंसिस्टेंसी दिख रहा है। तो अगर नेशनल इंटर जैसे एसआईएस में मैंने पार्टिसिपेट किया था, तो उसमें ग्रैंड फाइनलिस्ट थी, फिर इंटरनेशनल लेवल का हैकेथॉन मैंने जीता था, तो फिर उससे क्या इफेक्ट पड़ता है इंटरव्यू वगैरह में? फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन मुस्कान, आपने एक इंटरनेशनल लेवल पे हैकेथॉन जीता है, छोटी बात नहीं होती। हाँ, तो अगर आपने कोई हैकेथॉन वगैरह जीता है तो वो आपकी अचीवमेंट है। एंड ऐसा सेट कि लोगों को जैसे अपनी रेटिंग लिखनी चाहिए, वैसे आपको अचीवमेंट सेक्शन में लिखना चाहिए कि आपने ये हैकेथॉन में जीता है। एंड अगेन आप उसको एज अ प्रोजेक्ट भी दिखा सकते हो कि हैकेथॉन दोबारा प्रोजेक्ट बनाना है। इनफैक्ट हैकेथॉन मोर देन प्रोजेक्ट बनाना है। हैकेथॉन में जब आप जाते हो आपको पता होगा आप जीते हो, इसमें आइडिया की वैल्यू बहुत होती है। तो वो सिग्निफाई करता है कि यू हैव अ डिफरेंट थिंकिंग स्किल एंड यू हैव अ डिफरेंट लाइक यू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स बेसिकली। सो हैकेथॉन जीतना एक अच्छी अचीवमेंट है, एंड हाँ आपको वो लिखना चाहिए। हाँ, तो दो इंटरव्यू होते हैं 45 मिनट्स के। और तो जो हमारे केस में हुआ था वो ये हुआ था कि जब शॉर्टलिस्टिंग आई थी बच्चों की, उसके बाद एक वीक के अंदर अंदर उन्होंने सबको इंटरव्यू ले लिया था। एंड सो अगर आप सोच रहे हो कि आप वेट करोगे कि शॉर्ट लिस्ट हो जाओ एंड उसके बाद कुछ करना स्टार्ट करो, तो ऐसे वर्क नहीं करता। आपको पहले से पढ़ के रखना पड़ेगा। उस टाइम में आप सिर्फ अपनी चीज़ें ब्रश अप कर सकते हो, आप अपनी चीज़ों को रिविजिट कर सकते हो। ओके, सो 2 इंटरव्यू थे, दोनों डीएसएल को बेस्ड थे। एंड बेसिकली तुम्हारी थिंकिंग स्किल्स को कि तुम किस तरीके से सोच रहे हो, किस तरीके से सोल्यूशन को प्रॉब्लम को अप्रोच कर रहे हो, वो देखते हैं वो लोग। जो फर्स्ट इंटरव्यू था उसमें वो मेरा काफ़ी अच्छा गया था, सही मतलब मेरा 25 मिनट्स में क्वेश्चन हो गया था। एंड उसके बाद हमने ऑप्टिमाइजेशन वगैरह किया था और टाइम मिला था, हमने बात भी किया था आराम से मजे से। सेकेंड इंटरव्यू मेरा इतना अच्छा नहीं गया था। सिंस मेरा फर्स्ट इंटरव्यू इतना अच्छा गया था, मुझे काफ़ी ज़्यादा होप्स थी अपने सेकेंड इंटरव्यू से। और तो मतलब इट वाज लाइक मेरे को क्वेश्चन बहुत वेगली फॉर्म था और मेरे को बहुत सारे क्लियरिंग क्वेश्चंस पूछने पड़े थे एंड 15 मिनट निकल गए थे मेरे उसी में। सो मैं तो अपना फर्स्ट वाला टारगेट लेके चल रही थी, तो आई वाज लाइक 5 मिनट में नहीं होगा, बट मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया पिछली बार से, बट हो गया। तो सेकेंड इंटरव्यू मेरा ऐसा गया था फाइनली। ओके, सो इंटरव्यू प्रोसेस हमने अप्लाई नवंबर में किया था, इंटरव्यूज जनवरी में हो गए थे एंड रिजल्ट फरवरी में आया था। एंड टू माय सरप्राइज आई वाज सिलेक्टेड। अच्छा, एक और चीज़, जनरली सिलेक्शन गूगल में सिलेक्शन के बाद टीम मैचिंग प्रोसेस होता है, उसमें वो आपको एक सूटेबल टीम ढूंढते हैं आपके लिए। इंडिया में ये नहीं होता। सो अगर आपने इंटरव्यू कर लिया और आप सिलेक्ट हो तो आप सिलेक्ट। एक्सक्यूज मी, मेरा एक क्वेश्चन है कि जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो क्या होता है? मतलब डीपी के लेवल के आते हैं या फिर बेसिक एल्गो आता है, मतलब किस टाइप के होते हैं?
डीपी जर्नल मैंने नहीं सुना कि किसी को, बेसिकली मेरे कॉलेज में से किसी को डीपी का क्वेश्चन पूछा गया था. सो डीपी लेवल क्वेश्चन नहीं आते बिकॉज डीपी बहुत ज़्यादा थिंकिंग इन्वॉल्व चाहिए होती है उसके लिए. बट अगेन वो आपको सिलेबस देते हैं उसमें डीपी मेंशन होता है, सो यू कैंट रूल आउट एनीथिंग कि ये तो आएगा ही नहीं. बट डेफिनेटली जो थर्ड ईयर इंटर्न से पूछते हैं उस लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछते क्योंकि तुम सेकंड ईयर पे हो, और वो उस चीज़ का ध्यान रखते हैं. और मतलब कितनी प्रैक्टिस चाहिए हमें? रोज एक क्वेश्चन करें, रोज 10 करें, कितने करें, किस लेवल के करें, समझ में ही नहीं आता. यार अगर देखो कोड फोर्सेस देते हो आप, तो मैं उसके हाँ, अभी कंपैरिजन में चालू बता किया है. सकता हूँ. हाँ, तो कोड फोर्सेस अगर आप देते हो तो अगर आप उसमें ABC कर लेते हो ना आराम से, और उसके बाद आप डीपी ग्राफ में एटलीस्ट जो नॉन इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं वो सारे कर लेते हो आराम से, तो आपको दिक्कत ज्यादा नहीं होगी. और कभी इंटरव्यू में ऐसा हो जाता है कि यार कोई क्वेश्चन तुमसे ऐसा पूछ लिया जो कि तुम्हें नहीं आता, मतलब उतने अच्छे से नहीं आता, तो ऐसा नहीं है कि मतलब तुम्हारा इंटरव्यू बहुत खराब जा सकता है. इंटरव्यू में सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं देने होते, और ये होता है कि तुम्हें हिंट भी लेने होते हैं. जो इंटरव्यूअर होता है हम उससे भी पूछ सकते हैं कि यार ये क्वेश्चन में मतलब मैं कैसे आगे प्रोसीड करूं, तो वो हमें हिंट भी दे रहा होता है साथ साथ. तो तुम्हें ये प्रेजेंट करना होता है कि कोई प्रॉब्लम अगर तुम्हारे को दी है तो तुम सोचते किस तरीके से हो. इंपॉर्टेंट से ज्यादा वो बात होती है. सही सॉल्यूशन तुम बताते हो तो ठीक है, लेकिन अगर तुम उसको प्रेजेंट ढंग से नहीं कर सकते तो वो चीज तुम्हारी खराब इम्पैक्ट देती है. लेकिन अगर तुम्हारा सॉल्यूशन सही नहीं होता लेकिन सोचने का डायरेक्शन सही होता है कि प्रॉब्लम को तुम कैसे डिवाइड कर रहे हो छोटे प्रॉब्लम्स में, या फिर कैसे उसको अप्रोच कर रहे हो, वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इंटरव्यू में हमेशा ये ध्यान रखना कि यार अपने आप को प्रेजेंट अच्छे से कर पाओ. आंसर सही या गलत तो ठीक है, वो अलग बात है. और उसकी प्रैक्टिस के लिए मैं यही कहूंगा कि यार एटलीस्ट कोड फोर्सेस तो रेगुलर दो, या फिर कोड फोर्सेस वगैरह पसंद नहीं है तो इंटरव्यू प्रॉब्लम्स जरूर करो. एटलीस्ट डीपी और ग्राफ के तो कर ही लो, तो वो बेटर रहेगा. थैंक यू. So Aditi Verma will discuss her interview experience about Microsoft Codes. So Aditi, can you please start your experience? हाँ, तो कोडेस एक इंटर्नशिप कम मेंटोरशिप प्रोग्राम जो है माइक्रोसॉफ्ट कंडक्ट करवाता है. फॉर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स होता है ये, और ये आपके कॉलेज के थ्रू ही होता है. आप बाहर से इसमें अप्लाई नहीं कर सकते. जब माइक्रोसॉफ्ट आपके कॉलेज में आता है, तब माइक्रोसॉफ्ट कंडक्ट कराता है आपके कॉलेज में, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं. एंड इट इज़ ओपन फॉर ऑल, मतलब कोई उसमें नहीं है कि आपका बैक है तो आप नहीं अप्लाई कर सकते. आप, इट इज़ ओपन फॉर ऑल, सब अप्लाई कर सकते हैं इसमें अगर आपके कॉलेज आता है तो जब मेरे कॉलेज आया था वो मार्च एंड में, आई गेस, हाँ मार्च एंड में हुआ था कोडेस. और इसमें हमें 25 MCQ क्वेश्चंस पूछे गए थे, और उस 25 MCQ क्वेश्चंस में मोस्टली ऐसे कोड स्निपेट्स दिए गए थे. हमें उसमें आउटपुट्स गेस करने थे, और उसमें से कोई भी मतलब MCQ में एक आउटपुट आपको बताना था. और मोस्टली उसमें सर्चिंग एल्गोरिथम्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा पूछी गई थी. फिर बाइनरी सर्च के काफ़ी क्वेश्चंस थे, DFS के क्वेश्चंस थे. फिर हाँ, मोस्टली इन्हीं सब के क्वेश्चंस थे. जो भी आपका सिलेबस है फॉर DS का, वो मोस्टली वही पूछा जाता है. और अगर वो भी आप ढंग से प्रिपेयर कर लो, जैसे ट्रीज वगैरह की बेसिक क्वेश्चन, लेवल ऑर्डर, ट्रैवर्सल, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, तो आपसे ऑलमोस्ट सारे MCQs हो जाएंगे. सो कोडेस में उसके बाद टेस्ट होने के बाद आपका बच्चों को लोग शॉर्टलिस्ट करते हैं 2 चीज़ों के लिए. एक होता है मेंटोरशिप प्रोग्राम, और एक इंटर्नशिप ड्राइव के लिए, स्टेप इंटर्नशिप ड्राइव के लिए वो लोग शॉर्टलिस्ट करते हैं. जो इंटर्नशिप ड्राइव होता है उसमें जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तो एक टेक्निकल राउंड होता है. उस टेक्निकल राउंड में पहले 3 क्वेश्चंस होते हैं, मेटल प्लेटफॉर्म पे होता है वो. उसमें बेसिकली ज़्यादातर एरेज, स्ट्रिंग्स, ट्रीज, लिंक लिस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और स्टैक्स. ये इसके मीडियम लेवल क्वेश्चंस, और जो काफ़ी फेमस क्वेश्चंस हैं जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं ज़्यादातर, वो भी कर ले तो तीनों क्वेश्चंस हो जाने चाहिए. डिफ़िकल्ट नहीं होता है वो. और उसके बाद एक आइडियाथॉन होता है. उस आइडियाथॉन में हमें टीम्स में डिवाइड कर दिया जाता है. अलग अलग कॉलेजेस के बच्चे होते हैं टीम्स में, और उसमें हमें एक दिन पहले एक टॉपिक हमें चूज़ करना होता है. 5-6 टॉपिक्स दे दिए जाते हैं, उसमें से एक टॉपिक चूज़ करके उस पर हमें उसका एक टेक्निकल सोल्यूशन बताना होता है. और हमारे केस में वो वर्चुअली हुआ था. वैसे वर्चुअली नहीं होता है, हमें बैंगलोर जाके उनके ऑफिस जाके होता है वो.
उसमें आपको उसका टेक्निकल सोल्यूशन बताना होता है और उसमें एक मेंटोर आपके साथ रहता है उस पूरे प्रोसेस आइडियाथॉन के थ्रू, और वो आपके आइडियाज सुनता है। हर एक पर्सन को अपने अपने आइडियाज रिप्रेजेंट करना होता है, और मतलब मेंटोर जो है आपके आइडियाज के बेसिस पे आपको जज करता है। आपको कुछ कोड नहीं करना होता है उसमें, आपके जो आइडियाज हैं आप कैसे सोल्यूशंस बता पा रहे हो और कितने फीजिबल हैं, कितने पॉसिबल हैं, ये सारे चीज़ों को जज करके फिर मेंटोर्स आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं। उसकी शॉर्टलिस्टिंग आई गेस आइडियाथॉन के 1 वीक बाद आ गई थी। उसमें से जो बच्चे शॉर्टलिस्ट होते हैं उन बच्चों के फिर 2 इंटरव्यूज होते हैं। अगेन उन दोनों इंटरव्यूज में आपके डीएस एल्गो बेस्ड ही होता है वो, और क्योंकि आप सेकेंड ईयर के होते हो तो ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। बेसिक ट्रीज के क्वेश्चंस पूछते हैं ये लोग, ट्रैवर्सल, लेवल ऑर्डर, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल वगैरह। और आपके एरेज और स्ट्रिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एरेज और स्ट्रिंग के क्वेश्चंस इंटरव्यू बिट पे जो अवेलेबल हैं वो सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, तो आई थिंक यही पूछना ज़्यादातर आपका हो जाना चाहिए क्लियर। सो हाँ, उसके दोनों टेक्निकल राउंड्स में और सेकंड टेक्निकल राउंड में एचआर क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो वो अगर टेक्निकल राउंड क्लियर हो जाता है तो आपकी स्टेप इंटर्नशिप लग जाती है। और अगर आप स्टेप इंटर्नशिप के लिए सिलेक्ट नहीं होते हो तो आप मेंटोरशिप के लिए भी सिलेक्ट हो सकते हो, उसका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मेंटोरशिप प्रोग्राम में बेसिकली वेबिनार्स कंडक्ट होते हैं। हमारे टाइम में हमारे केस में हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वेबिनार्स हुए थे, और हमें 2 प्रोजेक्ट के ऑप्शंस दिए गए थे। एक प्रोजेक्ट था टिक टैक टो और एक प्रोजेक्ट था फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। उन दोनों प्रोजेक्ट्स में से हमें एक प्रोजेक्ट चूज करना था और वो प्रोजेक्ट बनाना था हमें, और टीम्स में डिवाइड होके। उसमें मतलब आपकी चॉइस होती है, आप अकेले भी बना सकते हो, बट वो लोग प्रेफर करते हैं आप टीम्स में डिवाइड होके प्रोजेक्ट बनाओ। टीम्स में डिवाइड होके एक प्रोजेक्ट बनाना था, और हर एक स्टूडेंट को एक मेंटोर दिए जाते हैं। उन मेंटोर्स के साथ आपकी मीटिंग होती है, 1:1 मीटिंग्स होती हैं, वो खुद ही शेड्यूल करते हैं, और उन मीटिंग्स में वो आपकी हेल्प भी करते हैं। अगर आप कहीं पे स्टक हो, आप उनसे कुछ पूछना चाहते हो कि हाउ टू प्रोसीड वगैरह, तो आपकी हेल्प भी करते हैं। और प्लस आपने कितना आपने प्रोसीड करा है, आपके कितने आइडियाज इम्प्लीमेंट हो पाए हैं, कितना आपका कोड क्वालिटी कैसा है, आपने अपने आइडियाज कितने आपके यूनिक आइडियाज हैं, वो उन सब के बेसिस पे वो आपको जज करते हैं। और एट द एंड वो एक फीडबैक आपको प्रोवाइड करते हैं आप माइक्रोसॉफ्ट को आपके बारे में। उस फीडबैक के बेसिस पे जब माइक्रोसॉफ्ट आपके कॉलेज आती है फॉर द इंटर्नशिप, वो आपके राउंड्स कम हो जाते हैं। जितना अच्छा आपका फीडबैक होगा उतने आपके राउंड्स कम हो जाएंगे, और उसका भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है आपको। सो या दैट्स इट, इतना ही यही प्रोसेस होता है इसका।